हाँ बेटा करवाई है, स्टार्ट नहीं होगी। चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. कौन पढ़ेगा पार्लियामेंट से? सर मैं पढ़ूं मनोज? मैं मनोज पढ़ू बेटा, कृष्णा। डॉक्टर ने हाथ उठा रखा है, इसके बाद पूरा नंबर आएगा। सर मैं पढ़ू। अर्नव ने बोला था, अर्नव को बोलते हैं। अर्नव के बाद ज्योत्सना का नंबर आएगा, उसके बाद बाकी लोग का, बाकी फिर कृष्णा का, फिर कृष्णा के बाद मनोज का। ठीक है, तो Sir, चलो पढ़ो। अर्नव पढ़ो। yes, sir. Yes, sir. Parliament. In the example of the office memorandum, do you remember the role of the Parliament? Perhaps not, since this decision was not taken by the Parliament. You might think that the Parliament had no role in it, but let us go back to the story and see where the Parliament figures in it. Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. The report of the Mandal Commission was discussed. The President of India mentioned this in his. The Prime Minister made a decision. Okay. The decision was not directly taken in the Parliament, but parliamentary decisions on the report. Sir, are you saying something? These are fill up the blanks. हाँ, I was saying these are the fill up the blanks, fill in the blanks. These sentences. सर आवाज कट गई। हम लोग Sir, लोगों ने शुरू में पढ़ा था ना। yes, sir, पढ़ा था. Yes, sir. अभी क्लियर है? Yes, Yes, sir. और तो अभी मैं वही बोल रहा था Yes, sir, clear कि यहाँ पे ना हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या लिखा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड दिस इन हिज इन द पार्लियामेंट इन हिज स्पीच। ठीक है, ये सब चीजें कहाँ हुई हैं? yes, sir. ठीक है, ओके, तो Sir, in चलो the नीचे Parliament पढ़ो। session. Yes, sir. द डिस्कशन। Yes, sir. The discussion was not The directly part. taken in the parliament, but parliamentary discussions on the report influenced and shaped the decision of the government. They brought pressure on the government to act on the Mandal recommendation. If the parliament was not in the favor of this decision, the government could not have done ahead with it. Can you guess why? Recall what you read about the parliament in the earlier class and try to imagine what the parliament could have done if it did not approve of the cabinet's decision. तो ये समझ में आ गया हमें कि अगर पार्लियामेंट इज नॉट इन द फेवर ऑफ डिसीजन, तो गवर्नमेंट जो क्या करेगी, वो उसे आगे बढ़ा ही नहीं पाएगी, मूव ही नहीं कर पाएगी इस मोशन को। ऑब्वियसली हमें कितना मेजोरिटी चाहिए, जब तक वो मेजोरिटी नहीं होगा हमारे पास, हम उसको आगे नहीं कर पाएंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. आगे पढ़ो बेटा इसको। क्या नाम है तुम्हारा? चाय दूं कि कॉफी दूं? ज्योत्सना ने बोला था ना शायद। ज्योत्सना। Yes, sir. हाँ देवांश, अभी आपको ही पढ़वाएंगे। माला, माला अभी देता हूँ। सर मैं पढ़ लूं? सिन्हा। चलो एक काम करो, सत्यम। सर मैं पढ़ूं? शिवम सुंदरम। कृष्णा यू स्टडी। कांत चतुर्वेदी। सर किसी की आवाज आ रही है पीछे से, पता नहीं किसके। Okay, sir. पता नहीं बेटा किसी का माइक ऑफ होगा। Yes, sir. मैं देखता हूँ। तुम आगे, कृष्णा तुम स्टार्ट करो। Okay, sir. Sir, यहाँ सर कहाँ से सब बता दीजिए। Sir, President made the decision. हाँ बेटा। Not taken. Sir, यहाँ से the Prime Minister made a नहीं बेटा, decision. नहीं, why do we need a direct. parliament से? Okay, sir. Okay, sir. Why do we need a parliament? In all democracies, an assembly of elected representatives exercises supreme political authority on behalf of the people. In India, such a nation assemble of elected representatives in
is called parliament. At the state level, this is called legislature or legislative assembly. The name may vary in different countries, but such an assembly exceeds in every democracy. It exercises political authority on behalf of the people in many ways. First, Parliament is the first authority for making laws in any country. This task of lawmaking or legislation is so crucial that these assemblies are called legislatures. Parliaments all over the world can make new laws, change existing laws, or abolish existing laws and make new ones in their place. Parliament all over the world से नीचे कर दीजिए. पहले उससे तो समझ ले बाबू, रुक जाए एक second. Okay, sir. Why do we require a parliament? Why do we need a parliament? Right? In everyday democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on the behalf of the people. होता क्या है कि जितने भी लोग हैं, अगर भाई वो लोग अगर डिसीजन करेंगे, कहीं मीटिंग करेंगे, तो उन्हें कोई शेल्टर तो चाहिए ना, कहीं पे स्पेस चाहिए जहां पर वो सब चीजें बातें कर सकें और ये सब चीजें कर सकें. Yes, sir. ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, वो पार्लियामेंट कहते हैं. Parliament. असेंबली जो होगी स्टेट लेवल पे इसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. ठीक है, Yes, sir. पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. ये मैंने बताया था, लेजिस्लेचर में जो होता है फाइनल अथॉरिटी, जो बनाने के लिए कोई भी रूल होंगे वो पार्लियामेंट. ठीक है, दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग एंड लेजिस्लेशन. हाँ बच्चा, नहीं आ रही भैया आवाज. जोशना आवाज नहीं आ रही बच्चा आपको. मैं तब भी आपको बोल रहा था आपको पढ़ने के लिए, आपको साउंड नहीं आ रही थी शायद. हेलो सर. जोशना बेटा, अभी आवाज आ रही है बच्चा? सर हमें तो आपकी आवाज आ रही है, उन्हें नहीं आ रही है बहुत देर से. शायद सर उनके डिवाइस में प्रॉब्लम होगा. नेटवर्क, हाँ ये Yes, डिवाइस में sir. प्रॉब्लम है, नेटवर्क में इशू है. सर उन्होंने वॉल्यूम लो करके रखा होगा शायद, मतलब गलती से, उन्हें पता नहीं होगा. जो भी होगा, चलो हम आगे समझते हैं, अभी वो देख लेंगे खुद ही. ठीक है, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज, ये मैंने बता दिया. ठीक है, दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीस असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर. ठीक है, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन प्लेस, इन देयर प्लेस. यानी कि पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है, पुराने laws लॉज को को मिटा सकती एडिट कर सकती है, अमेंड कर सकती है, पुराने लॉज को डिलीट कर करके उनकी जगह पर नए लॉज बना सकती है. Yes, sir. सर अबॉलिश किए थे सर, जैसे अभी 35A और सर दूसरा भी सर जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बना दी. सर 370. Yes, sir. तो 35 तो खैर पार्लियामेंट से बना भी नहीं था, वो तो राष्ट्रपति से डायरेक्ट बनवाया गया था. Yes, sir. बिना किसी पार्लियामेंट में डिस्कस किए हुए किसी फ्लोर पे. बट एनीवेज उसको भी उन्होंने अबॉलिश कर दिया, साथ में 370 को भी अमेंड कर दिया है. ठीक है, Yes, sir. सर आगे पढ़े. हाँ बेटा पढ़ो. Parliament all over the world exercise some control over those who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of the parliament. सा आगे पढ़ो. हाँ बेटा,
Okay, sir. Parliament control all the money that government have. It in most countries, any the public money can be spread only when the parliament sanctions it. समझना है बच्चों इसको थोड़ा सा, दोनों चीजों को। पार्लियामेंट क्या करती है पूरी दुनिया में? एक्सरसाइज करती है, क्या एक्सरसाइज करती है? सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। अब यहां पे याद रखेंगे, पार्लियामेंट इज नॉट द गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट फंक्शंस अंडर द पार्लियामेंट, राइट? Yes, sir. For Yes, example, sir. there are also vipaksh in this parliament, right? But in government there is no vipaksh. Yes, sir. The existing, the majority party called the government. ठीक है? Yes, तो यहाँ पर हमें प्रस्ताव थोड़ा सा एकदम से ये छोटा सा समझना है बच्चों कि पार्लियामेंट के अंडर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि गवर्नमेंट के पास अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, या अगर उसके पास इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं कि वो किसी भी किसी भी क्या बोलते हैं इसको, लॉ को एडिट कर करके नीचे चीजों में चेंज कर सकता है, तो वो चीजों को थोड़ा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, थोड़ा गवर्न करने की कोशिश करेगा। बट इवन इफ दैट पार्लियामेंट इज अबव दैट, उसके अलावा अगर मान लीजिए उसमें अमेंडमेंट लाते भी हैं, सो देयर इज सुप्रीम कोर्ट टू चेक इट, राइट? yes, sir. Now next, number 3, parliament control all the money government have. In most countries, the public money can be spent only when the parliament sanctions it. मतलब पार्लियामेंट जब सैंक्शन करेगी कि भाई ये मनी इस चीज में, इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू खर्चा होना है, तभी वो गवर्नमेंट उसको खर्च कर सकती है, राइट? मतलब आप कोई भी खर्चा करने से पहले चीजों को पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखोगे, ऐसा नहीं है कि उसको चीज को Yes, उठा के sir. रखोगे, ठीक है? Yes, sir. बजट होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बजट शुरू करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये चीजें हमने खर्च की हैं पिछले बार, और ये चीजें हम अब करेंगे। Yes, sir. Money orders या money bill. Yes, sir. मनी बिल्स, मनी ऑर्डर तो है ही, बजट भी स्पेशल मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. बजट हमेशा लॉन्च करते हैं जब भी। सर यहाँ पर सिर्फ एक लाइन दी हुई थी, इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। तो सर इसका मतलब क्या है यहाँ पे? बताया ना मैंने कि जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट में बैठती है ना, राइट? जो गवर्नमेंट के एमपीज होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? सब पार्लियामेंट में ना। Yes, वो sir. डायरेक्ट पार्लियामेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। सामने वाली जो अपोजिशन है वो भी हो गए, और जो पार्टी हो गई वो हो गए, अलायंस हो गए वो हो गए, सब के सब लोग कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं ना। तो पार्लियामेंट का फुल कंट्रोल है। ओके सर, ठीक है, Yes, sir. चलो अब मैंने किसका नाम बोला था पिछली बार? सर मेरा जोशिना। आपने मेरा भी नाम लिया था सत्यम गोयल, फिर आपने कृष्णा शर्मा का नाम ले लिया। हाँ, सही सही, मैंने सत्यम का नाम लिया था। सत्यम पहले, फिर उसके बाद माला, माला के बाद देवांश। सर आपने मनोज भी तो बोला था। हाँ, फिर मनोज ही बोला था, सॉरी, मनोज फिर देवांश। ठीक है, ओके। सो सत्यम, देन माला, फिर मनोज, फिर देवांश। फिर वैभव भी काफी देर से बोल रहा है, वैभव को बोलना है। ठीक है, और नारायण ने भी नहीं बोला है, नारायण को भी बोलेंगे, और बाकी लोगों से पढ़वाएंगे। भूमिका ने बोला था, भूमिका से बोलना है। ठीक है, वंशिका ने भी बोला था, वंशिका को बोलना है। ठीक है, चलो जल्दी फटाफट से पढ़ लो। सर नीचे कर दीजिए, थर्ड के नीचे। हाँ। पार्लियामेंट, सर पढ़ो। Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policy in any country. Parliament can seek information about any matter. Two houses of Parliament.
Since the parliament plays a central role in modern democracies, most large countries divide the role and powers of parliament in two parts. They are called chambers or houses. One house is usually directly elected by the people and exercises the real power on behalf of the people. The second house is usually elected indirectly and performs some special functions. The most common work for the second house is to look after the interests of various states, regions, or federal units. In our country, the parliament consists of two houses. The two houses are known as the Council of State, Rajya Sabha, and the House of the People, Lok Sabha. The President of India is a part of Parliament, although she is not a She is not a member of either house. That is why all laws made in the house come into force only after they receive the assent of the president. You, सर मैं आगे पढ़ूं? हाँ बच्चा पढ़ ले यार, ये अच्छा रुक जा तू रुक जा बस। पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Parliament is the highest forum of discussion and debate on the public issues and national policies in any country. Parliament can seek information about any matter. ठीक है, तो क्या होगा कि पार्लियामेंट क्या होती है, चूंकि मैंने ऑलरेडी बताया है, किसी भी डिस्कशन को या डिबेट को अगर हमें रूल को समझना है तो पार्लियामेंट जो है वो उसके लिए हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, राइट? यस सर। डिबेट उस पे करने के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को सीख कर सकती है किसी भी मैटर पर। ऐसा नहीं है कि आप उसे छुपा के कोई भी बिल लेके आओगे और पार्लियामेंट उस पर डिस्कस नहीं करेगी तो आपको लगेगा कि हम बच गए, ऐसा नहीं। वो कभी भी उसके बारे में बात कर सकते हैं, राइट? नाउ यूजुअली क्या होता है, चूंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट काउंसिल है, इतनी इंपॉर्टेंट फिगर है, तो इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड रखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे, एक जिसपे पीपल जिन्हें डायरेक्ट इलेक्ट करती है और एक ऐसा जिसको इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। जो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, ठीक है, वो बेसिकली रियल पावर एक्सरसाइज, हाँ वो रियल पावर एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा हाउस जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और वो कुछ स्पेशल फंक्शंस में काम करता है, राज्यसभा अथॉरिटीज होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट। तो मेजरली इनका जो काम है वो स्टेट्स और यूनिट्स के बारे में, उनको स्पेशल पावर्स है। तो हाउस ऑफ पीपल तो हो गया लोकसभा और काउंसिल फॉर स्टेट्स हो गया राज्यसभा, ठीक है। यस सर। ठीक है। अच्छा, तीसरा एक पार्ट होता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इसका, लेकिन प्रेसिडेंट बेसिकली पार्लियामेंट में बैठते नहीं। यस सर, वो पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, पर उन्हें काउंट उनके बगैर पार्लियामेंट का। नाउ वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सब, प्रेसिडेंट के बगैर पूरा लॉ सिस्टम नहीं हो सकता, उनके लास्ट सिग्नेचर होते हैं। ऑलरेडी आपको बताया था कि लास्ट में वो सिग्नेचर जो होने हैं इम्प्लीमेंटेशन के, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के भी हेड जो हैं वो कौन है? वो भी प्रेसिडेंट है सर। सारे कंट्री लेवल के जो वर्क होगा उनमें सब में लास्ट जो हैंड होगा वो प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। तो जब वो हेड है हर चीज में, तो उनको तो हेड रख करके सिग्नेचर उन्हीं से लेने पड़ेंगे ना अगली। भाई उनको क्या मतलब है पार्लियामेंट से? एग्जीक्यूटिव कहेंगे भाई हमारा क्या मतलब है, हमारा तो जो हेड हमसे कहेगा हम वो काम करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट के हेड कौन है? प्रेसिडेंट सर। जैसे टीचर से सब साइन कराते हैं, लास्ट में उन्हीं का मानते हैं। बिल्कुल, ठीक है। यस सर। यस सर। यू हैव रेड अबाउट इंडियन, ये पढ़ने का, ये किसके लिए बोला था नेक्स्ट मैंने? सर मेरे लिए। माला के लिए, हाँ ठीक है। सर पढ़ूं? हाँ बच्चा। You have read about the Indian Parliament in earlier classes. From the chapter 4, you know how Lok Sabha elections take place. Let us recall some key differences between the composition of two houses of Parliament. Answer the following for the Lok Sabha and the Rajya Sabha. What is the total number of members? Who elects the members? What is the length of the term in years? Can the house be dissolved or is it Parliament? सर ऊपर कर दीजिए।
which of the two houses is more powerful? It might appear that the Rajya Sabha is the more powerful, for sometimes it is called the upper chamber and the Lok Sabha the lower chamber. But this does not mean the Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha. This is just an old style of speaking and not the language used in our constitution. Our constitution does not give the Rajya Sabha some special powers over the states, but on most matters, the Lok Sabha exercises supreme power. Let us see how. First, any ordinary law needs to be passed by both the houses, but if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together. Because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. हाँ, नीचे कर दिए। पहले इसको समझ लेते हैं फिर नीचे चलेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास 2 हाउसेज है, तो उसमें से कौन ज्यादा पावरफुल है कौन ज्यादा नहीं है। यूजुअली अपर चैम्बर कहा जाता है राज्यसभा को, वाइल लोअर चैम्बर इज कंसीडर्ड फॉर लोकसभा। तो सुनने में ऐसा लगता है कि जो अपर चैम्बर है वही मोर पावरफुल होगा देन लोअर चैम्बर, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यस देखा जाए तो लोअर हाँ, चैम्बर कुछ स्पेशल पावर्स हैं उसके पास भी, राज्यसभा के पास भी, लेकिन जो ज्यादातर मैटर्स में लोकसभा ही है जिसके पास सुप्रीम पावर्स होती हैं। यस सर। जैसे कि कोई ऑर्डिनरी लॉ है जिसको पास होना है दोनों हाउसेस से, लेकिन मान लीजिए दोनों हाउसेस के विचारों में डिफरेंस है, तो क्या होगा, एक जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, दोनों पार्टीज, दोनों जो पार्लियामेंट के पार्ट्स हैं राज्यसभा और लोकसभा की एक जॉइंट मीटिंग होगी और उस सेशन में क्या होगा, वहां पर वोटिंग होगी। तो चूंकि राज्यसभा के पास नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो कम है, होते हैं। नहीं राज्यसभा के पास कम है, लोकसभा कह रहे हैं, लोकसभा के पास ज्यादा होते हैं, राइट। इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा है, सर वो प्रिवेल करते हैं। डबल से भी अगर कोई चीज ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्रिवेल कौन करेगा, लोकसभा। सर लोकसभा ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पर मेजरली ज्यादातर मीटिंग्स जो होती है उसमें जो वही डिसीजन मान्य होता है जिसमें कि जो लोकसभा जिसको बोलती है। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट पढ़ो ये। पढ़ो सर। Lok Sabha exercises more powers in money matters. Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money-related law, the Rajya Sabha cannot reject it. The Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest changes in it. The Lok Sabha may or may not accept these changes. और मनी मैटर्स में भी लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, मनी बिल वगैरह कुछ भी अगर ला रहा है तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा कैन डिले इट फॉर 14 डेज और सो। ठीक है, उसका क्या करेगा, सजेस्ट कर देगा कि भाई ये चेंजेस इसमें आप ला सकते हो, ये हम करेंगे। ठीक है, तो वो भी कई बार होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो होता है वो लोकसभा के ऊपर है कि वो उसे चेंज करे ना करे या फिर दोबारा से उसको भेज दे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसे पास करना ही पड़ता है। ठीक है सर, ये 14 डेज का टाइम पीरियड कुछ मतलब सर कोई रीजन है इसका मेन, या ऐसे ही रख दिया 14 डेज? 2 वीक्स का है, दोनों लोग उस पर सेशन पे बात कर सकते हैं, राष्ट्रपति इस बारे में सोच सकते हैं, जो पार्लियामेंट के जो हेड हैं, मान लीजिए लोकसभा के जो वो हैं चेयरपर्सन है या राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है, उसके बारे में उसमें कोई बात कर सकते हैं। तो इस चलता है। ठीक है, ओके सर। नंबर 3 पढ़ दे बेटा। Okay, sir. Most importantly, the Lok Sabha controls the Council of Ministers. Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers, including the Prime Ministers, have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. Most importantly, Lok Sabha controls the Council of Ministers. ठीक है, only a person who enjoys the support of the majority of the Lok Sabha members is appointed as a Prime Minister. सिंपल सी बात है
लोकसभा मेजोरिटी में जिस टीम के पास जिस भी पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, उन्हीं लोगों का जो हेड होगा, उन्हीं लोगों का जो चीफ होगा, वही क्या बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर, राइट। क्योंकि राज्यसभा के पास ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर Yes, है sir. कि वो व्यक्ति राज्यसभा से भी हो सकता है, वो व्यक्ति लोकसभा से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, अगेन वो उस पार्टी का ही हेड होगा जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है, कहां पर, लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में नहीं। Yes, sir. If the majority of Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers, including the Prime Minister, have to quit. Rajya Sabha does not have this power. Yes, मान लीजिए sir. लोकसभा के sir, एक doubt उन्होंने है। कह दिया, हाँ सर एक बोलो। डाउट है सर, अगर कोई राज्यसभा का मेंबर सर फाइनेंस टीम में हो पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर की, और उसकी पार्टी जो है वो जीत जाए, और फिर अपॉइंट उसे कर दे जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है करेंटली, तो सब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ के प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा ना? और सब फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा फिर? ना ना ना, तुम्हें फिर गलत, रुको सुनो, ऐसे समझो, सर, होता वो तो क्या है, सब पार्टीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से पहले हमारे यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, थिंक इज दिस वे, ठीक है। आप कह रहे हो कि राज्यसभा से कोई व्यक्ति है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट, यस सर। और वो सरकार चली गई, उसके अलावा फिर दूसरी किसी पार्टी की सरकार आई, ठीक है। यस सर। सर एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ कहना था सर, जैसे चीफ मिनिस्टर बना हुआ है कोई किसी स्टेट का, मान लीजिए यूपी का, और उसकी पार्टी जीत जाती है और अभी यूपी में इलेक्शन हो नहीं रहे, तो सर अगर उसे अपॉइंट कर दिया सर एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर सर क्या होगा? वो उन्हें पोस्ट छोड़नी पड़ेगी कि क्या होगा? सर वो सीएम भी रह ही सकते हैं साथ में। नहीं 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 नहीं, कोई और किसी उस पे पोस्ट पे नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो फिर मोदी जी पोस्ट क्यों छोड़ते सीएम की? यस सर, सर वही पूछ रहा हूँ। सर गुजरात नहीं, में यही तो हुआ था। नहीं ऐसा नहीं होगा, वहां पर विजय रूपाणी जी को इसलिए तो लाया गया था एज अ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मोदी जी को सीट Yes, छोड़नी sir. पड़ी, राइट। यस सर। ओके सर। तो सर कल को वही फॉर एग्जाम्पल, कल को एग्जाम्पल अगर पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बोला जाए कि भैया आप पार्लियामेंट में जाकर के अपने मेजोरिटी साबित कर दो और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थोड़ी रह जाएंगे, फिर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। सेम वे अगर आप वो बंगाल से, मान लीजिए वहां पर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो अगर उनको बोला गया तो वहां से जाकर के उनको एमपी वहां पर बनना पड़ेगा पहले तो स्टेट में, सॉरी इसमें सेंटर में, ठीक है। वहां पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे या तो फिर लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, जैसे भी बनेंगे, लेकिन आप Yes, मेंबर ऑफ sir. पार्लियामेंट बनेंगे, ठीक है। तो फिर आप स्टेट में थोड़ी रह जाएंगे। स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहने की शर्त क्या है कि वो स्टेट के किसी काउंसिल के मेंबर हों, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के, दोनों में से, विधानसभा या विधान परिषद। यस सेम सर। वे जैसे लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही वहां पर स्टेट में उनके नाम छोटे हैं, विधानसभा विधान परिषद। यस सर। तो या फिर अब एक व्यक्ति दो दो सदन में तो नहीं बैठ सकता ना एक ही समय पर ना। मान लीजिए अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हो दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यस सर। या आप 10th क्लास में भी हैं या फिर आप 9th क्लास में भी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यस सर। यस सर, ऐसा नहीं हो सर। ठीक है, तो आपको दोनों में अलग अलग चलना होगा, ठीक है। या तो आप चीफ मिनिस्टर ही रह सकते हैं या तो फिर प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि मैंने बताया पंजाब में Yes, या sir. बंगाल में या यूपी में, इनमें से किसी को बोला जाए कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर बनो, तो ये लोग थोड़ी ना कि चीफ मिनिस्टर भी रह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर भी रह सकते हैं, उनको सिर्फ एक ही चुनना होगा। यस सर। तो फिर अभी सर तो न्यू सर न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होंगे ना सर, जब पर पुरानी टीम है सर स्टेट की, पुराना हाँ, तो जो क्या सर होगा? काउंट सर वो भी चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं, पूरी टीम थोड़ी चेंज होगी, सिर्फ प्राइम एक व्यक्ति तो गया है, पूरी यस टीम सर। तो होगी, राइट, सर पूरी पर टीम तो रहेगी। हाँ, सर ऐसा पर भी हो सकता है कि उसी टीम में से किसी को उठा करके आप प्राइम मिनिस्टर बना दो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे सर जैसे प्राइम मिनिस्टर का होता है ना, अगर कोई वो मर गया या उसकी जो मर गया तो फिर पूरी टीम जाते दूसरी अपॉइंट होके आती है,
तो सर ऐसा नहीं होगा चीफ मिनिस्टर के केस में? नहीं नहीं, वही देखो सुनो क्या होता है, अगर एक व्यक्ति चला गया, फॉर एग्जांपल मर गया, डेथ हो गई या फिर चला गया, ठीक है, तो यस सर। होगा क्या, ऐसा नहीं है कि पूरी पार्टी तो उसके पास सीट्स तो है ना, हाँ वो Yes, वो sir. कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो दोबारा से अपॉइंट हो सकते हैं। यस सर, सर मैं यही पूछ रहा हूँ सर, पूरी जो हाँ। कैबिनेट बनता है सर वो हाँ वापस वो तो डिसॉल्व dissolve होगी, क्योंकि दोबारा से सब कुछ होगा। जब वो अपने प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो अपनी काउंसिल अपने दोबारा से बनाएंगे, अपनी कैबिनेट दोबारा से बनाएंगे। या यस कोई सर। चीफ सर मिनिस्टर बनेंगे तो वो दोबारा से अपनी कैबिनेट बनाएंगे, यस सर, पर लेकिन वो ऐसा तो अलग नहीं। किसी नहीं सकते, और वो पार्टी के उसी पार्टी के होंगे, ऐसा नहीं है कि उस पार्टी के नहीं होंगे, क्योंकि उनके यस पास सर। तो मैम वोट ज्यादा है ना। यस सर। सर पर ऐसे कैसे होगा Right? सर, अभी आपने कहा कि एक व्यक्ति गया, अगर उसकी जगह कोई और अपॉइंट हो जाएगा तो सर बाकी सबकी क्यों जा रही? हाँ मैंने वही तो, नहीं मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। देखो कैबिनेट किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है, और जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से रख सकता है, प्राइम मिनिस्टर को राइट है कि वो अपनी मर्जी से कैबिनेट रखे, राइट। तो मान लीजिए आपके डिफेंस मिनिस्टर कोई और हैं, अपने आपके फाइनेंस मिनिस्टर कोई और हैं, आपके रेल मिनिस्टर कोई और हैं, आपके एजुकेशन मिनिस्टर कोई और हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कोई और हैं। तो आपने क्या करा, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, सेम वे चीफ मिनिस्टर में भी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए वही चीफ मिनिस्टर के लिए, ठीक है। मान लीजिए वो चीफ मिनिस्टर या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, हट गए, डेथ हो गई, चले गए, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन गए, या उन्होंने पॉलिटिक्स से रिजाइन ले दिया, या कुछ भी, ठीक है, या पैरालिसिस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो इस पोजीशन में नहीं है अब कि वो गवर्न कर सकें स्टेट को या फिर सेंटर को। तो वो क्या होगा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो बाकी उनकी फिर कैबिनेट भी डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन कैबिनेट फिर दोबारा से बनेगी, जो कि नए चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे अपने आप दोबारा से। ओके सर। सर ये तो सर हमारे मतलब पिछले चैप्टर्स में भी था ना सर कि हाँ। जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं सर तो पूरी कैबिनेट भी रिजाइन कर देती है सर लोकसभा में, पर राज्यसभा में ऐसा नहीं यस होता। सर, तो ये एक था पर्टिकुलर पिछले प्रोसेस होता है ना, ये नहीं है कि वो मर्जी से थोड़ी ना उठ के चल दिए खत्म, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस, यू हैव टू रिजाइन, राइट। वो रिजाइन सर मैं यस सर, सर चीफ मिनिस्टर की भी तो सर फिर डिसॉल्व होती होगी ना, या सर? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो डिसॉल्व होगी, लेकिन होता क्या है कि अक्सर क्या होता है, डिसॉल्व होती है और उन्हीं लोगों को दोबारा से अपॉइंट कर दिया जाता है, ऐसा होता है। ओके सर। सर मतलब कुछ बार आपने वो ऐसा भी होता है डिसॉल्व कि बोलने की जगह मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट में, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो क्या करेंगे, उनको मान लीजिए उन्हीं को प्राइम चीफ मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर तो बना दिया, अब वो चीफ मिनिस्टर भी है, साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और वो क्या करते थे, वो फॉरेन अफेयर्स भी देखते थे, फॉरेन मिनिस्टर भी वो देखते थे। यस सर। ठीक है, ओके सर, ऐसे समझ आ गया। सर मजा आ गया? सर अगर एक चीफ मिनिस्टर सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है सर तो सर क्या बाय इलेक्शन होंगे सर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे सर, जो दोनों ही चीफ सीजन मिनिस्टर छोटे गए? क्या होता है, देखो दोनों ही सीजन में कोई भी व्यक्ति, ये समझ लो कि ज्यादातर लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की जगह चीफ मिनिस्टर बनना पसंद करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अधिकतर जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो कहीं ना कहीं से पहले एमपी ही होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बाद में फिर उनको एज ए सीएम कहीं भेजा जाता है, पार्टी डिसाइड करे कि भाई आप जाकर वहां पे सीएम बन जाइए। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, राइट। यस सर। इससे पहले वो गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सेंटर में, यानी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हालांकि कैबिनेट में कोई मिनिस्ट्री खास नहीं थी उनके पास इस तरह से, लेकिन हाँ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के गोरखपुर से। यस फिर सर। उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं, उनको बोला गया, पार्टी ने बोला कि भाई आप एक काम करिए, आप जाइए वहां पर चीफ मिनिस्टर बन जाइए। तो उन्होंने एमपी से रिजाइन कर दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद क्या हुआ, वहां पर उन्होंने ओथ ले लिया चीफ मिनिस्टर की तरह से। अब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी से भी वो मेंबर ऑफ स्टेट
कमेटी बन सकते हैं, दोनों में से कहीं भी, चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली से बन जाए या लेजिस्लेटिव काउंसिल से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनना है उन्हें तो बस, ठीक है। ओके सर। सेम वे सर, जो पंजाब में अमरिंदर सिंह है, उनके साथ भी ऐसा था। यस वो सर, सर आपने अमृतसर बताया से था, हाँ, अमृतसर से एमपी थे, उनको उन्हें बोला कहा गया था ठीक है आप राज्यसभा जाइए। या लोकसभा में से किसी में पार्ट ले ले। तो वहां पर उनके पास ऑप्शन आ गया, तो ऐसी सीन है, ठीक है। आगे सर, बढ़ेंगे बच्चे। यस सर सर। फिर गोरखपुर में सर बाई इलेक्शन हुए होंगे। हाँ बेटा, गोरखपुर में बाई इलेक्शन हुए थे। सर हाँ बच्चा। सर अगर किसी एक सर मिनिस्टर का सर बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो सर डॉक्टर बोलते हैं कि उसे 2 या 3 महीने में सर वो रिकवर से पूरी तरह हो जाएगा, तो सर तब चेंज होंगे सर मिनिस्टर? हाँ, फॉर द टाइम बीइंग क्या होता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे वाइस भी तो होते हैं हमारे पास, यस सर। जैसे होम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वैसे वाइस, यस सर। प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना हमारे पास। यस सर, मतलब वो तब तक हो जाएंगे सर जैसे सर स्कूल में होता है प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल हो जाता है जब प्रिंसिपल नहीं होते। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो किसी सी वजह से कुछ दिनों के लिए वो नहीं आ सकते हैं, तो उनकी जगह पर बाकी टीम तो है ना, वो काम करेगी, ठीक है। अगर उनको बोलेगा कि 6 महीने नहीं आ सकते या साल भर नहीं आ सकते, तो हो सकता है किसी और को अपॉइंट कर दें, ठीक है। यस सर। उनकी Yes, जगह sir. अगर मान लीजिए वो फिट होकर के वापस आ जाते हैं, तो फिर वापस से वो जा सकते हैं, क्लियर। यस सर। Okay, सर sir. पर अगर ऐसा हो कि सर चीफ मिनिस्टर सर 4 इयर्स का उनके पास 4 इयर्स का लाइफ स्पैन नहीं आ पाए और लास्ट ईयर में आए, तो सर फिर वो तो नहीं अपॉइंट वापस हो सकते ना मतलब सर? मतलब अब वो वापस नहीं बन सकते ना सर सीएम। सर पहले जो बने थे उन्हें इंजरी हो गई, वो 4 इयर्स का इतना लाइफ स्पैन था, पर जब उनका लास्ट मतलब इलेक्शन होने वाले थे तब वो जाके ठीक हुए, तो सर फिर वो वापस सीएम बनेंगे कि नहीं? अगर देखो, अगर 2 दिन भी है ना अनाउंसमेंट होने के बाद यस सर। इलेक्शन, सीएम अपॉइंट नहीं होते हैं कोई भी सीएम। मान लीजिए अगर चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, तो या तो वो रिजाइन दे देंगे, ठीक है, या कुछ समय के लिए उनकी टीम जो है वो संभालेगी चीजों को, वापस से आ जाएंगे, ठीक है। यूजुअली यस कोई भी सर। व्यक्ति जो समझदार होता है और वो देश के प्रति चिंता करता है, तो वो बीमार अगर होते हैं इतने सीरियस कि वो काम ना कर सके कोई भी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो उसको छोड़ करके दूसरे को किसी को मौका देंगे ताकि वो काम ठीक से चलता ओके रहे। सर। ओके सर। देवांश चौधरी बेटा, तुम हाथ उठा सर। रहे हो, बताओ क्या हुआ। सर वो सर रीडिंग के लिए उठा ना। अच्छा, ओके ओके, जय चला गया, ओके। बेटा अभी तुम्हारा नंबर तो मैंने बोला था ना, सीक्वेंस बताया ना मैंने, किसका नंबर है नेक्स्ट। सर मनोज कुमार के बाद। सर मनोज कुमार। का मनोज, मनोज वैभव बेटा, मनोज के बाद है तुम्हारा, फिर देवांश का है। पढ़ो। यस हाँ मनोज। Political executive. Do you remember the story of office memorandum with which we started this chapter? We found that the person who signed the document did not take the decision. He has only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of the prime minister in the taking that decision, but we also know that he could not taken that decision if he did not have support from the Lok Sabha. In that sense, he has only executing the wishes of parliament. Thus, at different level of government, we find functionaries who take day-to-day decision, but behalf of the people. All those functionaries are collectively known as the executive. They are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government. Thus, when we talk about the government, we usually mean the execution. Executing in the case of office memorandum. You might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is minister more powerful than the civil servant? The बेटा civil रुक जा, servant. नहीं नहीं वो उसमें नहीं है, वो इसमें है, तुम कहाँ पहुंच जाते हो। सर नीचे। मुझे लगा पेज खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, रुको ना, वो अभी तुम कहाँ पहुंच गए, रुको, एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास, ठीक है, वो जो हमने मेमोरेंडम देखा था, वो एग्जांपल देखा था,
तो लोकसभा ने क्या किया, वो मेमोरेंडम पास कर दिया, ऑर्डर इशू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो एक डिपार्टमेंट को भेजा जहां पर उसको इम्प्लीमेंट कराने का उनके पास उनका काम था, उनका जॉब था कि उसको इम्प्लीमेंट कराए, राइट। Yes, sir. डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? तो वो क्या काम करते हैं, Civil वो services. एग्जीक्यूट करते हैं द विश ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट जो चाह रही है, पार्लियामेंट ने जो नियम बनाया है, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, उसको क्या कराएंगे, वो एग्जीक्यूट कराएंगे, Yes, इम्प्लीमेंट sir. करेंगे। Sir, civil services वाले ना? जी, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कौन से वाले, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, बिकॉज दे Yes, आर इन sir. चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन का इंचार्ज होते हैं, इसलिए उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। Yes, sir. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive, ठीक है, क्योंकि मेजर जो फंक्शनरीज का काम है, जो काम कराने का काम है, डे टू डे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराने का काम है, वो कौन करवाते हैं, Government. एग्जीक्यूटिव। Executive. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ देम, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। Permanent The executive. permanent executive. Sir, पढ़ो. पढ़ बेटा। Political and permanent executive. In the democratic country, two categories make up the executive. One that is elected by the people for specific period is called political executive. Political leaders who take the big decision fall in this category. In the second category, people are appointed on a long term. This is called the permanent executive or civil services. Persons working in civil services are called civil servant. They remain in office even when the ruling party changes. These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. Can you recall the role of political and non-political? Executive in the case of office memorandum. You might ask, बस 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 बस, ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स का बात हम कर सकते हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, मतलब परमानेंट और पॉलिटिकल। परमानेंट वो होते हैं जो कि एक Exam दे के आते हैं. हाँ, मतलब कि एग्जाम दे करके और जॉब्स एज अ जॉब उसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. वो हो गए परमानेंट। हालांकि इनका काम मेजरली क्या होता है, वो डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता डिसीजन मेकिंग में। Yes, ऑन द sir. कॉन्ट्रेरी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो एक शॉर्ट टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं और पब्लिक उन्हें डायरेक्ट अपॉइंट करती है, ठीक है। Yes, sir. कि वो क्या हमारा करते लॉ हैं, एग्जीक्यूट पॉलिटिकल लीडर्स वो होते हैं जो पॉलिटिकल डिसीजंस को दे टेक पॉलिटिकल डिसीजंस, राइट। तो बेसिकली वो लोग हो गए जो 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 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो आप समझिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, वो लोग क्या कहला सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहला सकते हैं, ठीक है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स वो हो गए जो कि सिविल सर्विसेज के थ्रू ज्वाइन करते हैं एज अ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और वो काम करते हैं सर्वेंट्स के रूप में। Yes, sir. हाँ, ठीक है। yes, sir. चलो, अब नेक्स्ट बच्चा किसका नंबर बोला था मैंने, सर मेरा। देवांश का या वैभव का? सर देवांश। सर मैं देवांश। पढ़ूंगा। देवांश के बाद देवांश. देवांश बोलो। Okay, sir. You might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? सर ऊपर से ही ना, इधर से। The reason is very simple, वहां से। ओके सर। या नहीं नहीं नहीं, रुको यहाँ से पढ़ना है। हाँ हाँ, ठीक सर है। वहीं से। हाँ, you might ask, ठीक है ठीक है, you might ask. You might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is the minister more powerful than the civil servant? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance ministers. Sometimes the minister may know very little about the technical matters that come under their ministry. They could easily happen in ministries like defense, industry, health, science, and
technology, mines, etc. Why should the minister have the final say on these matters? The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. The minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. She she is finally answerable to the people for all the consequences of her decision. That is why the the minister takes all the final decisions. The minister decide the overall framework and objective in which decisions on policy should be made. The minister is not and is not expected. सर नीचे कर दो. The minister is not and is not expected to be an expert in the matters of her ministry. The minister take the advice of experts on all technical matters, but very often experts hold different opinions or place before her more than one option. Depending on what the overall objective is, the minister decides. ठीक है, एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, होता क्या है कि मोर पावर किसके पास हो सकती है कि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर होगी या नॉन पॉलिटिकल यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास. सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल. सिविल सर्वेंट यूजुअली क्या होते हैं, वो हालांकि एजुकेटेड ज्यादा होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको एक्सपर्ट नॉलेज ज्यादा होती है किसी सब्जेक्ट के बारे में, और वो सालों से किसी एक एडवाइजरी वर्किंग फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर किसी की मिनिस्ट्री के अंडर वो ज्यादा काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल उनको ये कोई व्यक्ति है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, या कोई है डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, या कोई है रेलवे मिनिस्ट्री में काम करते हैं कुछ लोग. ठीक है, तो उनका अपने सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, उनके पास एक्सपीरियंस होगा चीजों को कैसे फेस करना है. लेकिन पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते हैं पब्लिक के द्वारा, और पब्लिक को सुप्रीम बताया गया है किसी भी डेमोक्रेसी में. इसीलिए क्या करते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को क्या करते हैं, क्या मानते हैं हम, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी मानते हैं, उन्हें हम जानते हैं कि वो ज्यादा उनके पास पावर होती है. यस सर. ठीक है, इसलिए जो फाइनल से होता है, फाइनल कॉल जो होती है वो मिनिस्टर के पास होती है, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास होती है, ना कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास. यस सर. रीजन का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई जो है द विल ऑफ द पीपल जो है वो डेमोक्रेसी में सुप्रीम मानी गई है. ये मैं आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था. ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी कहा गया था कि विल ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम इन अ डेमोक्रेसी. ठीक है, यस सर. तभी हमारा जो सुप्रीम लीडर है वो पीपल से अपॉइंट होता है. गवर्नमेंट के जो सुप्रीम लीडर होते हैं, देश के सुप्रीम लीडर यस सर इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली जो होते हैं वो गवर्नमेंट के सुप्रीम लीडर जो है. ठीक है, मिनिस्टर के पास ऑब्वियसली नहीं होते हैं, ना ही वो एक्सपर्ट होते हैं, ना ही उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस भी मे बी हमारे उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि कोई अगर वो अनपढ़ व्यक्ति भी है तो भी वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, और हो सके तो वो जीत भी सकते हैं. डिपेंड करता है ये पब्लिक के विल के ऊपर. ठीक है, यस सर. लेकिन क्या करते हैं, वो एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं ज्यादातर टेक्निकल मैटर्स में. ठीक है, कई बार बहुत कम ही ऐसा होता है कि मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्सपर्ट की एडवाइस को चैलेंज करते हैं या मना करते हैं कि नहीं तुम्हारी बात गलत है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि भाई इन लोगों को ही, ये लोग लगातार इसमें है, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, मैं किस साल कौन से मिनिस्ट्री मेरे पास है, क्या पता नेक्स्ट टाइम मैं जीतूं ही ना. तो उनको पता होता है कि भाई जो ऑलरेडी जिसके पास ये काम करने का एक्सपीरियंस है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको दो लोग सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, एक वो व्यक्ति जो लगातार आपको कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, और एक वो व्यक्ति जिन्होंने अभी अभी पढ़ाना शुरू किया है. फॉर एग्जाम्पल हमारे हेड हैं वो. ठीक है, तो अब है क्या स्थिति, वो मुझ पे ये छोड़ देंगे ना. मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं लगातार काफी समय से, और एक हमारे हेड नए नए आए हैं, वो पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, लेकिन वो हेड है हमारे. तो हालांकि उनके पास ये पावर तो है कि मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं या क्या पढ़ाऊं, लेकिन वो उसे मेरे ऊपर ही छोड़ेंगे ना कि भाई कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर एनसीईआरटी ने मना कर दिया है, कौन कौन से चैप्टर बोर्ड्स में आएंगे. वो सब चीजें मेरे को ही तो पता है, वो तो उनको नहीं पता. तो क्या करेंगे कि भाई आप सर अपने हिसाब से देख लीजिए. ठीक है, बहुत कम लोग वो ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं तुम ये वाला चैप्टर मत पढ़ाओ, ये वाले पढ़ाओ.
ऐसा बहुत कम होगा, या ऐसे मत पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ, sir. क्योंकि उन्हें पता है कि भाई बच्चों को इनका इंटरेक्शन, उनको पता है इनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो चुका है, वो जानते हैं काफी समय से पढ़ा रहे हैं, तो वरना अगर मैं इंटरफेयर करूंगा तो हौच पौच हो सकती हैं चीजें, हो सकता है चीजें अच्छी भी हो जाए, लेकिन हो सकता है चीजें खराब हो जाए, और खराब हो जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हेड पे आएगी। भाई अगर टीम हारती है तो टीम हारती है तो उसकी Captain. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? कैप्टन के पास होती है ना, कैप्टन के पास। हेड के पास होती है ना, तो वही वाली चीज है। Yes, समझ में आ sir. गया बच्चों चीजें? Yes, sir. कैप्टन के पास होती है। ठीक है। Actually, this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decision, not the expert. जिनको सारा कुछ पता होता है, जो obviously जो कहना चाहिए, जो टॉप व्यू से देखते हैं, वही मेजरली सारे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो कैसे लेते हैं? डिस्कस करने के बाद, अपने अपने मिनिस्ट्रीज में अपने अपने लोगों से डिस्कस करने के बाद तब वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है। नेक्स्ट मैंने किसको बोला था पढ़ने के लिए बच्चा? वैभव। Sir, वैभव। ठीक है वैभव, पढ़ो बच्चा। Prime Minister and Council of Ministers. The Prime Minister is the most important political institution in the country. Yet there is no direct election to the post of the Prime Minister. The President appoints the Prime Minister. But the President cannot appoint anyone she likes. The President appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as Prime Minister. In case no single party or alliance gets a majority, the President appoints the person most likely to secure a majority support. The Prime Minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. After the appointment After the appointment of the Prime Minister, the President appoints other ministers on the advice of the Prime Minister. The ministers are usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha. The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members of Parliament. Sometimes a person who is not a member of Parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the houses of Parliament within 6 months of appointment as minister. Council of Ministers is the official name for the body that includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. Cabinet Minister. बस बेटा, बस इसको समझ लो पहले, ठीक है। हमें पहले देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर का क्या सीन है, कैसे बनते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मेजरली क्या होते हैं किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर में से होते हैं एक। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। आपने किसी को भी, यहां तक कि मोदी जी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन वो एज ए प्राइम मिनिस्टर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। वो चुनाव किसके लिए लड़ रहे थे? बीइंग व्हाट? फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। एमपी बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। और वो चुनाव कहां से जीते हैं, कोई बता सकता है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? सर वाराणसी। शाबाश, वाराणसी। मोदी जी। किसने बताया बच्चा? सर वैभव। वेरी गुड। तो याद रखेंगे वो वाराणसी से चुनाव लड़े थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव नहीं लड़े थे, वो चुनाव लड़े थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो भी टीम, जो भी पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, वो अपना एक लीडर चुनती है, वो अपना एक नेता चुनती है, और वो लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर। राइट? यस सर। तो वो बीजेपी के पास काफी सारे वोट्स आ गए, 300 से ऊपर उनके मेंबर्स बन गए, तो उन्होंने अपना लीडर चुना मोदी जी को, और मोदी जी बन गए प्राइम मिनिस्टर। ऐसे होता है। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट को ये राइट होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते कि चलो तुम करो, तुमको बना देंगे। ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी की पावर है, जिसके पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी के मेंबर्स हैं, वो लोग बताएंगे मेंबर्स कि भैया हम सब चाहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो बने प्राइम मिनिस्टर। कौन है वो? कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इस बार मोदी जी ने उनको बोला गया कि भैया तुम ये बनेंगे मोदी जी,
तो प्रेसिडेंट के पास लेटर गया, प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है भैया आइए अपनी सरकार बनाइए। ठीक है। यस सर। Yes, sir. सर एक डाउट था। Yes, हाँ। sir. यस सर, जैसे हमें सर जैसे लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सर अगर मेजोरिटी पार्टी अपने लीडर से ही खुश नहीं है और वो अपना लीडर चेंज कर देते हैं जो टर्म होता है, तो सर प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होता है जो हो जाते हैं उस 5 साल के टर्म में बीचों बीच। हाँ हो सकती है, हालांकि ऐसा यूजुअली होता नहीं है, पर ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो सर उस प्राइम मिनिस्टर का टर्म तो उतना ही रहता है, मतलब जो पिछले प्राइम मिनिस्टर का था उनका जो बचा हुआ टर्म था वो नया प्राइम मिनिस्टर पूरा करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि वो लोकसभा का टर्म है ना 5 इयर्स का, प्राइम मिनिस्टर का टर्म जो तब 5 इयर्स का है क्योंकि लोकसभा का टर्म 5 इयर्स का है वहां पर। ठीक है, क्योंकि लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाएगी भाई 5 साल बाद, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर कहां से बनेगा, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो तभी होंगे ना जब पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है। जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो फिर पार्लियामेंट रहेगी नहीं लोकसभा वाला, हालांकि राज्यसभा वाला रहेगा लेकिन लोकसभा वाला नहीं रहेगा। तो लोकसभा वाले में क्या होगा, वो दोबारा से इलेक्शन होंगे, दोबारा से टीम बनेगी, दोबारा से पार्टी जीतेगी, जो भी जीतेगी वही अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। ठीक है, ओके सर। तो वो उतने ही, फॉर एग्जांपल 3 साल बाद किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो अब ठीक नहीं है, सही नहीं है, या फिर अनफिट हो गए हैं, चोट लग गई है, या फिर किसी और वजह से वो हटाना चाह रहे हैं उनको, तो या फिर वो है ही नहीं दुनिया में, कुछ भी रीजन है, अगर वो नहीं है, अनफिट है, तो क्या होगा, नए जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो सिर्फ उतने ही समय के लिए बनेंगे जितने समय तक वो लोकसभा रन करेगी। फॉर एग्जाम्पल 1.5 साल 2 साल जो भी बचेगा समय, उसी समय तक के लिए बनेंगे, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी और दोबारा से इलेक्शन होंगे। ठीक है, जैसा लास्ट में लिखा भी देखो, Yes, sir. he continues in power so long as he remains the leader of majority party or coalition. वो तभी तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं जब तक वो लीडर बने रहेंगे पार्टी के या कोalition के। ठीक है, ओके सर। सेम वे नेक्स्ट क्या होता है, फिर जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट से, प्राइम मिनिस्टर जो जो चाहते हैं वो उनकी एडवाइस से प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, अधिकतर समय पर ऐसा ही होता है कि वही प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं अपनी कैबिनेट में, जो भी उनकी टीम में से अपनी पार्टी में से लेते हैं या फिर कोalition में से लेते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, यहां से फिर देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स। मैंने बताया था मिनिस्टर के पास ये राइट होता है कि वो अपने मिनिस्टर्स खुद चुन सकते हैं, राइट। सेम में चीफ मिनिस्टर के पास भी है, Yes, sir. वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर चुन सकते हैं, जो भी उनकी कैबिनेट है वो चुन सकते हैं कि भाई ये मेरे डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, ये मेरे एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, ये मेरे फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, ये मेरे रेलवे मिनिस्टर बनेंगे, जो भी बनेंगे वो सब बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाता है, उनका ऑफिशियल नाम है कैबिनेट मिनिस्टर का, कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट जो भी है उसमें हम क्या करेंगे, उनका नाम क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं उसे ऑफिशियली हम। और इसमें यूजुअली 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट रैंक पर। ठीक है, Yes, sir. और कोई पढ़ना चाहेगा? ज्योत्सना ने नहीं पढ़ा, ज्योत्सना बेटा आवाज आ रही हो तो पढ़ो। यस सर, आ रही है। ठीक है बच्चा, पढ़ो। Cabinet ministers are usually top-level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major ministers. Usually, the cabinet ministers meet to take decisions in the name of the Council of Ministers. Cabinet is thus the inner ring of the Council of Ministers. It comprises about 25 ministers. Ministers of कैबिनेट state मिनिस्टर, with एक सेकंड रुक जाओ, सुन तो लो। ये जो मिनिस्ट्री होती है ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, और तीसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, ये कैसे होता है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे। यूजुअली क्या होता है, जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के या फिर पार्टीज के या फिर कोएलिशन के, उनको हम मेजर मिनिस्टर चार्ज देते हैं, वो उनको हम बड़े मिनिस्टर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के करंट हेड जो भी होंगे वो मेजर कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अभी इस समय डिफेंस में शायद राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह को हम क्या बोलेंगे, वो कौन से मिनिस्टर हो गए, वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए।
Cabinet minister. Cabinet minister. Cabinet हाँ, minister. usually cabinet minister need to take the decision in the name of the cabinet council of minister. Usually क्या होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं असलियत में वही उसके हेड होते हैं उस पूरी कैबिनेट में, उस डिपार्टमेंट के, ठीक है, और वही ज्यादातर डिसीजंस को उन्हीं के नाम पर वो फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है. कैबिनेट इज thus the inner ring of the council of ministers. It comprises about 20 ministers. इसमें लगभग 20 मिनिस्टर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में. फॉर एग्जांपल डिफेंस के अलग हो गए, फाइनेंस के अलग हो गए, एजुकेशन के अलग हो गए, हेल्थ के अलग हो गए, सबके अलग अलग, मतलब मेजर जो बड़े बड़े नाम है वो वहां पर आ जाएंगे, ठीक है. फिर आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. ये पढ़ो बेटा. Ministers of state with independent charge are usually in charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meeting only when specially invited. Ministers of state are attached. ये इंडिपेंडेंट वाले मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कौन होते हैं? ये स्मॉलर मिनिस्ट्रीज इनको दी जाती हैं, ठीक है, छोटी मिनिस्ट्रीज जिसकी उतनी ज्यादा मतलब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, ठीक है, चीजों को. तो वो बेसिकली कैबिनेट मीटिंग में तभी आते हैं जब वो उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट. Ministers of state are attached to and required to assist cabinet ministers. अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो लोग होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर जिनको हमने ऊपर पढ़ा था ना, उनको असिस्ट करने का काम करते Yes, हैं, sir. ठीक है. चलो नीचे पढ़ो बेटा. Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. That is why parliament democracy in most countries is often known as the cabinet form of government. The cabinet works as a team. The ministers may have different views and opinions, but everyone has to now up to every decision of the cabinet. होता क्या है कि सभी मिनिस्टर्स के लिए लगातार मिलना जरूरी पॉसिबल नहीं हो पाता. मान लीजिए कोई कहीं पर है, कोई कहीं है, तो हर चीज में वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं. तो क्या होता है, उसके लिए क्या होता है कि ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं, ठीक है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इसलिए क्या कहते हैं, अक्सर दुनिया में, पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में क्या कहलाता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट ही चला रही है ना गवर्नमेंट को एक तरीके से, ठीक है. सो द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम. द ministers may have different views and opinion, but everyone has to own up to every decision of cabinet. जो मिनिस्टर्स होते हैं, मान लीजिए स्टेट मिनिस्टर हो गए या मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस हो गए, वो सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, किसी पे अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली मानी कौन सी जाएगी, जो कि कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है वो डिसीजन लेगी, जो कैबिनेट है, Cabinet. ठीक है. Yes, sir. चलिए, और कोई बच्चा बताओ पढ़ना चाहता है क्या? अभी तो समय आए. पढ़ लिया ना, और उनमें से कह रहा हूँ जो नहीं पढ़े होंगे. Okay, sir. समय आए. जय, हाँ जय. सर, इस पूरे को मैं कर दूं? जोशना क्या करो बेटा? सर मैं कह रही थी सर, इस पूरे टॉपिक को मैं चल बेटा कर लो, शाबाश, कोई बात नहीं, कर लो. यहाँ इसको और कर लो. एक्चुअली में जय ने पढ़ा नहीं है और टाइम ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक बार जय को पढ़ लेने दे. ये वाला पॉइंट है. अच्छा पढ़ूं? एक बार जय को पढ़ लेने दो, उसके बाद ये पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. समय नहीं बचेगा बच्चा. तुम एक काम करो जय, तुम ही पढ़ो पहले, अगर टाइम बचेगा तो फिर वापस से मैं तुमको बोल दूंगा, ठीक है बेटा? Okay, sir. No minister can openly criticize any decision of the government, even if it is about another ministry or department. Every ministry has secretaries who are civil servants. The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decisions. The cabinet as a team is assisted by the cabinet secretariat. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. No ministers can openly criticize any decision of the government. ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी टीम में हो और आप अपनी ही गवर्नमेंट की, अपने ही पूरे टीम की बुराई करोगे तो फिर तो आप कैसे रहोगे उस टीम में, ठीक है.
यहाँ तक कि आप Yes, sir. अपने दूसरी जो अपने अदर मिनिस्ट्री है उनके खिलाफ भी नहीं बोलो, क्योंकि आप पार्टी में हो, पूरी टीम में हो, तो आपको डेमोक्रेसी बना के रखनी है उसकी, ठीक है। एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज जो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स होते हैं। दी सेक्रेटरीज प्रोवाइड दी नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू मिनिस्टर टू टेक मेजर डिसीजंस, ठीक है। वो मैंने ऊपर बताया था, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई आप इसको ऐसे ऐसे चलाइए, ठीक है। कैबिनेट इज अ टीम is as a team is assisted by the cabinet secretariat, ठीक है। तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर ही होती है, ऐसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होती है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट किससे बनती है, सेक्रेटरीज से मिलकर बनती है, ठीक है। Yes, sir. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. वो क्या काम करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वही सेक्रेटेरिएट बनाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ और पढ़ते बेटा, पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जल्दी से। Powers of the Prime Minister. The Constitution does not say very much about the powers of the Prime Minister or the ministers or their relationship with each other. But as the head of the government, the Prime Minister has wide-ranging powers. He chairs cabinet meetings. He coordinates the work of different departments. His decisions are final in case disagreements arise between departments. He exercises general supervision of different ministries. All ministers work under his leadership. The Prime Minister distributes and redistributes work to the ministers. He also has the power to dismiss ministers. When the Prime Minister quits, the entire ministry quits. बस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की कौन सी पावर्स होंगी, मिनिस्टर्स की कौन सी पावर्स होंगी, या उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे, लेकिन चूंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, तो मेजर पावर्स जो है वो सब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। कैबिनेट मीटिंग के प्रेसिडेंट वो होते हैं, ठीक है। ज्यादातर उनके डिसीजंस फाइनल होते हैं। किसी भी डिसएग्रीमेंट में अगर मान लीजिए किसी भी दो मिनिस्ट्रीज में कोई बात नहीं तय हो पा रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रन करने में, तो फाइनल डिसीजन किसका रह जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का। वही अपॉइंट करते हैं किसी भी मिनिस्टर, वो अपने उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पर रेलवे है, तो रेलवे से हटाकर उनको फाइनेंस में डाल दिया, फाइनेंस से हटाकर रेलवे में डाल दिया, रेलवे से हटाकर के एजुकेशन में डाल दिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री ही, कैबिनेट ही वो क्विट करती है, खत्म हो जाती है। मैंने बताया था, ठीक है। Yes, sir. चल बेटा जोशना पढ़ दे नीचे से। जोशना, ज्योत्सना, अभी बच्ची देखो गायब हुई। आज नारायण का नंबर ही नहीं आया। नारायण है बेटा? सर मेरा भी नहीं आया। अच्छा हाँ, तो तुम ही पढ़ दो। चलो रीड करूं? पढ़ दो। हाँ पढ़ दो सर। ज्योत्सना, तुम टाइम पे भाग जाते हो, कहाँ चले जाते हो? सर रुको, वो सौभाग्य सर रुक ज्योत्सना जा, पढ़ लेगी, बस 3 ही मिनट रह रही है। मैं कल शुरू कर दूंगी, कल या परसों जब। चल सही है, कल नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तुमको ही बोलूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। हाँ नेक्स्ट क्लास में अपन जब भी आएंगे तो सबसे पहले तुमको ही बोलूंगा, ठीक है। ज्योत्सना बच्चा पढ़ ले बेटा। ज्योत्सना यस सर। पढ़ दे बाबू। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet, it is the prime minister who is the most powerful. The powers of the prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government.
as political parties have come to play a major role in politics. The Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. The media also contributes to this trend by making politics and Politics. elections as a competition between top leaders of parties. In India, too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hand of the Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authorities because he had great influence over the public. Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. Of course, Colleagues. the extent of power widely by a prime minister also depends on the personality of the person holding that position. देखो क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, कैबिनेट में मोस्ट पावरफुल जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में वही होता है, और विद इन द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर हैज द मोस्ट पावर. ठीक है. The power of the prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades of parliament democracies are sometimes seen as prime minister form of government. यूजुअली क्या होता है, इतनी पावर्स आ गई है प्राइम मिनिस्टर के पास कि जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जा रहा है. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टी से क्या होता है कि मेजर रोल होता है पॉलिटिक्स में. प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि वो कैबिनेट को कंट्रोल करते हैं, उसके हेड होते हैं, चेयर करते हैं वही. ठीक है. मीडिया भी काफी कंट्रीब्यूट करता है दिस ट्रेंड इन बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज अ कंपटीशन बिटवीन द टॉप लीडर्स ऑफ पार्टी. होता है क्या है कि वो दिखाते हैं कि भाई ये वाले पार्टी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, ये वाले को कम मिल रहे हैं, या इस लीडर की बहुत पॉपुलैरिटी है, इस लीडर की पॉपुलैरिटी कम है. तो क्या होता है कि कंपटीशन सा बन जाता है. ठीक है. हमने ऐसी टेंडेंसी देखी है खासतौर से इंडिया में भी, जहां पर प्राइम मिनिस्टर के पास इमेंस अमाउंट ऑफ पावर होता है. जैसे जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके पास नॉर्मस अथॉरिटी थी क्योंकि उनके काफी पब्लिक पर काफी इन्फ्लुएंस था, लोग काफी उनको पसंद करते थे. सेम वे इंदिरा गांधी के पास भी बहुत पावर्स थे. ठीक है. तो वो भी, उनको भी काफी ज्यादा वो लाइक किया जाता था. यहाँ तक कि जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई और वो अब ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए, तो ये एक संकट बन गया था पूरे देश में कि उनकी जगह कौन लेगा. फिर सभी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी आकर के उनकी जगह पर उनको संभाला था और काफी अच्छे से रन किया था. ठीक है. Yes, sir. तो ये हमने देखा कि एक ऐसा भी वो तरीका है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर के पास इमेंस अमाउंट ऑफ पावर होता है टू रन दी गवर्नमेंट. ठीक है. चलिए अब यहां से हम फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके सर. ओके सर, बाय Okay, sir. ठीक है बच्चों. Okay, आज के लिए sir. इतना ही. Good night, sir. Bye, sir. Good night. सर, थैंक यू. Sir, एक doubt है. Sir, Bye, bye. sir. Thank you, sir. Good night, everyone. Sir, Good night, everyone.